अभिजीत रॉय। तो लास्ट क्लास जो हम कंटिन्यू कर रहे थे न्यूमेरिकल्स, राइट, वो हम इस सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस सी सम मोर न्यूमेरिकल्स, राइट। तो जरा इसको देखते हैं, चलिए इसको जरा शुरू कीजिए। तो bob of pendulum, a bob of pendulum, 2 meters, right, lie at P. So where is my P? So this is basically the fixed location, right? So this is my, hold on please. So ये मेरी point है जहाँ पे ये this is the string of 2 meters already given to you, okay? और यहाँ पे आपकी lies, it reaches at Q. So यहाँ पे आपको इसको लेके ना यहाँ पे आप पकड़ के हो, and then you leave it, and once you leave it, it comes down, okay? Due to the air, there is a lot of friction over here. और ये सारी की सारी एनर्जी जो है यहाँ पे जो P में थी, that is not converted to Q. Some part of the energy is being given out, right? ये कौन ले लिया? ये हवा ने ले लिया. So that is what is air friction, right? That is what is air friction. So at point P, right, we will have an energy that is basically your potential energy, that is mgh. अगर आज ये एयर फ्रिक्शन नहीं होती तो ये सारे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे Q पे मिल जाती, and that would have been mv square. So all our energies, because you see if this is my reference point ना, तो यहाँ पे मेरी हाइट जीरो हो जाती है। अगर हाइट जीरो हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर बिकम जीरो, and therefore entire potential energy is converted into a kinetic energy. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि आपने देखा यहाँ पे 10% बर्बाद हो गया, 10% बर्बाद हो गया। इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ, 90% मिला ना हमें। सो दैट मीन्स व्हाट आई एम गोइंग टू से इज एट P, एट Q, राइट, एट Q मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू, एक्चुअली 10% खराब हो गई थी तो 90% बच गई, एंड दैट इज नथिंग बट 90% ऑफ माई mgh. So this should have been the result. So should is the result, okay, basically not the result, basically the equation, okay. यहाँ से आप मास को काट सकते हो and you do the calculation and you can very easily calculate your v from here, and you just see to it कि which one will be your v. तो अगर आप इसको थोड़ा सा solve करते हैं, g कुछ दे रखा है नहीं, no, okay, so therefore you will have 90 by 100 into 2, right, into 9.8 into height is 2 meters, right? So height is 2 meters. So if you have this, right, get your result on this square, okay? So therefore under root भी करनी पड़ेगी. So अगर आप करेंगे तो शायद I think 6 will be the result, right? I'm not sure of it. Okay, just check your answer. Out of these 4 you will get 1, okay? अच्छा, और एक करते हैं, right? तो this is energy किस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गई. Now this is another one, power applied, power applied to a particle varies with time at t is, मैंने t की एक function दे रखी है मुझे यहाँ पे, right? It is basically a function of t, okay? So it is basically a function of t. Now look over here, if it is a function of t, तब हम क्या करेंगे? तो थोड़ा सा हम, let's see this. Now, सबसे पहला बात, right, being objective you have to be very fast, but अब जब मैं समझा रहा हूँ I can't be fast, right? But you will be fast. You can skip number of steps, okay, right? So the basic approach is the P of t is given to you. So if P of t is given to you, that becomes 3t square minus of 2t plus 1. So this is my power का equation जो दे रखा है मुझे, और ये watts में है, लेकिन ये इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम. फाइंड द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिटवीन 2 to 4 सेकंड. सो 2 to 4 सेकंड के बीच में क्या काइनेटिक एनर्जी होगी. देखिए इसकी दो अप्रोच होगी, right? You can solve it in this way. Now just have a look. Now let us go with the classical method, the normal mathematical method, right? You know kinetic energy is nothing but half mv square. So this is my kinetic energy, and this is what you need to find, राइट, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी. तो एक काम करेंगे ना, हम दो v निकालेंगे. एक वो v जब 2 सेकंड वाली होगी, एक वो v जो 4 सेकंड वाली होगी. यू कैन कैलकुलेट इट इन दैट वे एंड गेट जस्ट डिफरेंस, गेट द डिफरेंस बिटवीन देम ऑफ द टू काइनेटिक एनर्जीज. बट द क्वेश्चन इज, दिस इज पावर. सो पावर को क्या करेंगे हम? पावर को बेसिकली यू नो, work done by rate of doing work is nothing but power. So this is the general expression of power. So what is work done then? Therefore what is work done? Work done is power into time, right?
So अब मेरी कुछ बात बन सकती है, because power is a function of time now, so I can solve it by taking an elementary, एक छोटा सा ले लेते हैं हम, right? So this is the elementary values, and if you integrate both the side, you will get W, which is equal to integration of 3t square minus 2t plus 1, and with that you will have dt. Now straight away you can put a limit over here, and that limit is 2 to 4. So 2 to 4 will be my limit. Okay, so if you put this 2 to 4 limit, automatically क्या हो जा रही है? Automatically क्या हो जा रही है ये automatically what I'm getting is कि the difference, right, of the work done, and you know any change in work done, right, is nothing but your energy. So ये अपने आप kinetic energy आपको दे देगी. तो जस्ट थोड़ी सी इंटीग्रेशन देख लेते हैं, बिकॉज नीट वाले बच्चे थोड़े से कमजोर होते हैं इंटीग्रेशन में, बट दिस इज क्वाइट सिंपल. दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन इज सिंपल कंपेयर टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, सो इन दिस केस इट इज, लेट अस पुट इट देयर इन दिस वे, 3t क्यूब अपॉन 3 minus 2t square upon 2, and that is t, and here we have the limit that is 2 to 3. So that will cancel out, it will cancel out. ये तो बहुत आसान हो गया. So you can take this as 3 cube minus of t square plus t, and you have got 2 to 3. If you want to make it simpler, because 3 का cube 2 to 4 है. Okay, just have a look. This is limit from 2 to 4. Yes, it is 4. Okay, right. Okay, thank you. And this is 2 to 4 basically. Hold on. So this is 2 to 4. Okay, so just you need to put the values. Yes, 2 to 4. Okay, just put it over here now. So क्या करें, 4 मने और देखिए 4 का क्यूब थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी हो जाएगा, तो जल्दी भी करनी है मुझे, तो एक काम करो, एक t को कॉमन ले लो. दिस विल मेक इट इजियर. ओके, बिकॉज दिस विल बी कन्वर्टेड नाउ टू t स्क्वायर माइनस t and plus 1. अब आपको इस एक्सप्रेशन में डालनी आसान हो जाएगा, बिकॉज द फर्स्ट वन इज 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 प्लस 1. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, एंड देन माइनस विथ, and now you put 2, so 2 माने 4 minus 2 plus 1, right? Now I hope you can do the rest part of it. Okay, तो ये एक इसका फंक्शन हो गया, right? Do the calculations carefully and get your answer out of these 4, right? I think 46 ना, 46 आनी चाहिए, एक बार चेक कर लेना फिर भी आप, right? Okay, now let's see the next one. Now this is what? This is basically a force. एक force लगाया आपने, acting on a particle causes a displacement of it now, right, on its own direction. Okay, on its own direction. Okay, in the same direction. If the work done is 6 joule, then find the value of C. Where is C? Okay, यहाँ पे C है, बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ पे एक C है, and that C is over here. ये देखो आप, ये C निकालनी है मुझे. ओके, ये सी को निकालनी है मुझे. चलो कोई बात नहीं, इट्स सिंपल, बिकॉज वर्क डन 6 जूल्स बोल दिया आपको, राइट? सो वर्क डन इज 6 जूल. सो अरे इट्स सिंपल. सो वर्क डन मतलब क्या? वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड बोथ ऑफ देम आर प्रोवाइडेड टू यू, एंड मोर ओवर दीज टू आर गिवन इन द वेक्टर्स. तो मैं भी वेक्टर्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ. ओके, मैं भी वेक्टर्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ. तो फोर्स डाल देते हैं पहले. सो व्हाट इज फोर्स? बेसिकली 3i minus plus 3cj plus 2k. Okay, and then the next part is, what is the displacement part? minus 4i plus 3k, right, plus 3k. Okay, but 2j भी है. Okay, so 2j माइनस प्लस ऑफ 3k. एक्चुअली बोर्ड बहुत शाइन करता है. ओके, तो ये एक बात हो गई. इट्स अ डॉट प्रोडक्ट. सो डॉट प्रोडक्ट यू ऑलरेडी नो, i vector into i vector, I into i is nothing but 1. Okay, so I'm only interested in ii, jj and kk. So that will give rise to 12. This will give rise to plus का 2c, right na? And this will give rise to 6, right na? And this is work done, which is given, and that is 6 joules, and which is given, and that is 6, right? So you can very easily calculate this, right? तो कितना आ गया बताइए? तो पहला बात तो ये 6 और ये 6 काट दीजिए. Okay, so 12 is equal to 2c, and c will come out to be as 6. क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है. So this one I have solved it to the end, and the answer is 6. Fine.
Okay, let's do the next one. Okay, this one, right? Please try this one. तो ये वाला करते हैं. If the momentum is increased by 20%, then kinetic energy is increased by how much? Right? Kinetic energy को आप कितना बढ़ाएंगे अगर आपकी मोमेंटम को आपने 20% बढ़ाया है? तो इसका मतलब सबसे पहला काम होगा मेरा कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे मोमेंटम के फॉर्म में लेके आए. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. ओके, सो ये करने से थोड़ी सी आसान हो जाएंगे, आप मैंने कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे थोड़ा सा. राइट, सो लेट अस सी दिस नाउ. ओके, नाउ हैव अ लुक. ये देखो आप, तो सबसे पहले काम करते हैं. मोमेंटम इज पी विच इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी. ओके, पहली बात. दूसरी बात है, आई नीड अ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. So kinetic energy is half mv square. So momentum, kinetic energy. Fine? अच्छा. तो if the momentum is increased by this, so I have momentum with me and I need to find kinetic energy. तो एक काम करते हैं, यहाँ से मुझे velocity की कोई आवश्यकता नहीं है, तो velocity को p by m कर देते हैं. Right? Velocity, no data of velocity is given. Right? If the same question would have put in another form, कि kinetic energy is increased by या फिर velocity is increased by, तो हम velocity को use करते हैं. यहाँ पे वेलोसिटी की कोई काम नहीं है, हटा दीजिए. ओके, सो देयरफॉर कैसे हटाऊं? फोर्स, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू v का स्क्वायर, और v के जगह पे मैं p स्क्वायर बाय m स्क्वायर रख दूंगा एंड दिस विल कैंसिल आउट एंड हियर इज माय काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इन द हाफ p स्क्वायर m. सो दिस इज व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द मोमेंटम, और अगर मैं ये काम करता हूं तो अब मेरे पास दो केस होगी. एक में मोमेंटम और मास, ये सबको, मास इज कांस्टेंट बेसिकली, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, राइट, एंड नॉट ऑलवेज, राइट, इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, और काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, कितनी बदलेगी दिखानी है मुझे. तो चलिए केस 1 करते हैं. केस 1, सो काइनेटिक एनर्जी को मैं k मान लिया. राइट, काइनेटिक एनर्जी k1, लेट अस से k1, एंड द सेकंड केस इज मोमेंटम. पहला केस में मेरी जो मोमेंटम है, सो दैट इज नथिंग बट योर, लेट अस से p1. तो केस 1 हो गई मेरी ये. व्हाट अबाउट केस 2? नाउ इफ यू टेक ऑफ केस 2, काइनेटिक एनर्जी पता नहीं, यही तो निकालनी है. राइट, दैट इज व्हाट इज k2. राइट, और मोमेंटम का बारे में इंटरेस्टिंग बात होगा. दिस इज p2 बेसिकली, बट दिस यहाँ पे बोला इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%. सो डिक्रीज, तो पहले कितनी थी? पहले p थी, अभी it is decreased by 20%, and therefore you will get your result as कितना? 100, that is 80 by 100. Sir, increased. Increased. It is increased. Okay, sir. Sorry. तो you just add this. अब तो हमारे पास अब कितनी हो गई? पहले जितनी थी उससे 20% क्या हो गई है? बढ़ गई है. तो पहले मेरे पास क्या थी? So this is my P2. So पहले मेरे पास क्या थी? You call this as P1. पहले मेरी P1 थी, अब माइनस प्लस इंक्रीज्ड बाय कितना? 20%. सो 20% ऑफ पहले जो थी, एंड दैट इज व्हाट इज P1, एंड देयरफॉर यू विल गेट इट एज 120 by 100 of P1. So this is what is the result of P2. So I've got two cases. पहला केस में क्या थी? तो सेकंड केस में हमारी ये कितनी 20% से क्या हो गई थी? बढ़ गई थी. ओके, 20% से मेरी ये बढ़ गई थी. तो कैसे होगा अब ये? अब जरा इन डेटा को यूज कर लेते हैं. जैसे ये मेरी काइनेटिक एनर्जी है, तो फर्स्ट केस के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी k1 इज इक्वल टू हाफ p1m. राइट, फर्स्ट p1 स्क्वायर, सॉरी, एंड द नेक्स्ट केस के लिए डिवाइड कर दूंगा k2 के साथ हाफ. राइट, देन यू हैव गॉट व्हाट? p2 का कितना स्क्वायर अपॉन m. राइट, सो आई हैव गॉट p1 p2, आई हैव गॉट k1 k1 और k2 का रेशियो मुझे अभी मिल जाएगा. नाउ कैसे करेंगे? नाउ लेट अस सी दिस नाउ. तो उस केस को भूलिएगा नहीं प्लीज, आई एम कीपिंग इट असाइड. ओके, सो हियर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, और अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो आपकी हाफ कट गई, मास कट गई. सो आई एम लेफ्ट विथ k1 k2 विच विल बी इक्वल टू नथिंग बट, ये बोलिए, P1 स्क्वेयर अपॉन P2 का स्क्वेयर,
और P1 P2 हम अभी यहाँ पे निकाले हैं, सो P1 को तो आप P1 ही रखेंगे, लेकिन P2 को आप लिखेंगे, यू कैन कैंसिल दिस आउट देन, ओके, दिस बिकम्स 6 एंड दिस बिकम्स 5, तो 6/5 ऑफ कौन P1 उसका लेकिन स्क्वायर, सो उसका लेकिन स्क्वायर, सो दिस विल कैंसिल आउट, इसका मतलब एक रेशियो आ गया मेरे पास, मेरी K1 upon K2 की जो रेशियो है वो है ये नीचे है ऊपर चली गई, दैट गिव्स राइज टू 25/36, सो दैट मीन्स यू कैन से मेरी जो काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंस होगी वो डिफरेंस बेसिकली K1 इज इक्वल टू K1 is equal to 25/36 into K2, right? और आपको बोला गया है चेंज बताएं, right? If you look at the question, I hope up to this point it is clear, right? So अब आपको बतानी क्या है, चेंज कितनी होगी. So if you go up, right? So if the momentum is increased by 20% कर दिया, then the kinetic energy is increased by कितना परसेंट? हमने पता कर लिया है कि कितनी बढ़ेगी, राइट, पिछले के मुकाबले कितनी बढ़ेगी. सो इसको हम मैथमेटिक्स में क्या बोल रहे हैं, पिछले के मुकाबले कितनी बड़ी है. सो देयरफॉर तो दिस विल बी द फाइनल स्टेप, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो K डैश बाकी K2 पहला वाला स्टेप, पहला हमारा केस क्या है बताओ, वो क्या लिया था, K2 minus K1 divided by K1 and you can just put it over there and into 100 कर दो आप, you will get your answer as percentage. Okay, so this will be the result, right? कुछ ऐसा आपको करनी है यहाँ पे, right? Just calculate it. Remaining is the calculation part. जब आप डालेंगे तो ये cancel out हो जाएगी and so on. Clear? ठीक है? And this is the result, right? यहाँ पे जो आएगा आप जरा check it out, right? Okay, fine. So ये एक थोड़ा सा अच्छा था, right? पहले के मुकाबले ये थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन थी, right? Alright, very popular in JEE, right? JEE कहता हूँ, नीट में बहुत पॉपुलर है ये, okay? This type, okay? Now, what about this one? और एक करते हैं ये वाला. If the potential energy of the two molecules is given by this, then at equilibrium position, its potential energy is equal to what? Okay, तो U दे रखा है और U ही निकालना है, right? U दे रखा है, right? जरा ध्यान दीजिएगा, U दे रखा है और U ही निकालना है. मतलब थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन का ट्विस्ट को समझिए आप. तो if the potential energy, that means potential is given to you, और लास्ट में बोल रहा है then the potential energy is, right? That means इस इक्वेशन के साथ ही सब कुछ करनी है, okay? इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या चाहिए? That is the main thing, okay? So equilibrium होने के लिए, for any particle to be at equilibrium, so that means the derivative of this, I will make it equal to 0. Okay, the derivative of this is equal to 0. That means इसको जब मैं differentiate करूँगा तो differentiate जब हम करते हैं हमेशा with respect to something करते हैं, right? किसी के मुकाबले की when you compare it with, तो most of the time student ये सोचते हैं कि it is always time. No, it is always that parameter which is varying. यहाँ तो सबसे important बात यहाँ तो time है ही, है ना? तो फिर क्या है, right? A बदल नहीं सकती है, B बदल नहीं सकती है, right? तो फिर ये A और B शायद कैप्स में होनी चाहिए या फिर दोनों स्मॉल लेटर में होना चाहिए, बट whatever, right? So what we do over here is just we need to differentiate it, make it equal to 0, right? Differentiate करेंगे, make it equal to 0 करेंगे और उसके बाद हम जो मेरी कंडीशन आएगी, that is what is called condition of that equilibrium position, और उस डेटा को उठा के इस U में डालनी है, तब जाके ये हमारी आंसर आएगी. समझो चीज को, पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगाएंगे एंड दैट इज व्हाट इज नथिंग बट योर डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, और नेगेटिव साइन भी आती है बिकॉज इट इज चेंज, ओके? फोर्स के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो इसको. डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे. थोड़ी हेवी डिफरेंशिएशन होगा मेडिकल वाले बच्चों के लिए, जेई वाले के बच्चे के लिए बहुत सिंपल रहना चाहिए, ओके? डिफिकल्ट क्या है, ये नीचे है, इस आर को ऊपर ले जानी है और माय नेगेटिव साइन आ जाएगी एंड यू डू दैट, ओके? सो वो चीज मैं दिखाऊंगा अभी आपको, राइट? अच्छा, और उसके बाद जो मेरी आएगी ना वहां से इक्वल टू 0 कर दिया आपने, विल गेट एन इक्वेशन, राइट? फ्रॉम दैट इक्वेशन यू गेट दैट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ओके? तो वो भी चीज देखनी है मुझे, और जो मेरी आंसर आई है ना उस आंसर को यहाँ पे बैठानी है, ओके? क्योंकि यहाँ पे क्यों बैठानी है लास्ट स्टेप में, क्योंकि उन्होंने बोला है द गिवन पोटेंशियल एनर्जी इज, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी बताइए, ओके? और पोटेंशियल एनर्जी ये रहा,
तो आप तो डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करोगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी ना, राइट? वो तो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ दैट, ओके? वी हैव टू पुट दैट कंडीशन इन द गिवन इक्वेशन. सो लेट अस चेक दिस आउट, ओके? राइट? क्लियर? तो थोड़ा सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कैसे कैसे क्या किया जाए. ओके ना, इधर आओ. ओके, सो लेट्स सी दिस. So let's write down u first. So u is equal to a r to the power 6 minus b. I don't know why b is small, right? Capital B आप रख सकते हो वैसे. Okay. अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा. नेगेटिव भी डाल सकते हो फोर्स के साथ कंपेयर करें तो, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन इक्विलिब्रियम. ओके, आई हैव टू मेक दिस इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम. ओके, तो ये 0 करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे. किसका डेरिवेटिव करेंगे? d बाई डी एक्स का विथ रेस्पेक्ट x. यहाँ पे क्या है मेरे लिए? r, राइट? फॉर मी इट इज r. सो क्या लिखूं बताइए? a r को थोड़ा ऊपर ले जाऊं -6 माइनस b इस r को भी ऊपर ले जाते हैं. ठीक है, इस r को भी ऊपर ले जाते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट करेंगे तो -6 a r to the power -6 -1 -7. Got it? Clear? माइनस का, राइट? नेक्स्ट बोलिएगा. 12 प्लस हो जाएगी, अब ये नीचे -12 आ जाएगी. सो दैट बिकम्स 12, राइट? सो 12b r to the power -12 and what next? -1. That is minus का 13. Put it there. And this result, right, for equilibrium, लिखिएगा यहाँ पे for equilibrium, right? और इस चीज को मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, right? तो बहुत सारा बात कॉमन आ जाएगी. Now if you make this 0, then what you will do, right? इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. तो इसको और थोड़ा सा ये देखिए मेरा, जैसे यहाँ पे तो पहली बात है कि आप इस 6 को कॉमन ले लें और यहाँ पे आप ये 8 टू दी पावर -7 को पूरा कॉमन ले लें आप. ओके, -7 को आप पूरा कॉमन ले लें तो आई विल हैव ओवर हियर a, कैपिटल A, बस केवल माइनस, ये भी माइनस है और प्लस, राइट? यहाँ से आपने 6 कॉमन ले लिया है तो 2, राइट? क्लियर? 2 और b बच गई. अब कितनी आई? 7 कॉमन ले लिए हो तो कितना बचेगी बताइए? -7 प्लस कितना इज इक्वल टू 13. सॉरी, माइनस कितना इज इक्वल टू 13? बोलिए. -13 कब देगी? जब मैं यहाँ पे कितना डालूंगा? आई विल पुट 6 ओवर हियर ना. सो देयरफॉर कितनी बच जाएगी यहाँ पे? 8 टू दी पावर -6 एंड दैट इज इक्वल टू 0. क्लियर? एंड वंस यू हैव दिस देन आपका सारा काम हो गया. 2b अपॉन कर दिया मैं 8 टू दी पावर 6 2b, सॉरी चल ठीक है, इज इक्वल 8 टू दी पावर 6 नीचे आ गया, दैट इज इक्वल टू a, राइट? दैट इज इक्वल टू a एंड 8 टू दी पावर 6 कैन बी रिटन एज 2b अपॉन a. सो दिस इज माय माइंड इट, दिस इज द कंडीशन. आप फिर से आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको, राइट? फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं. आपको ये पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, आपको ये कंडीशन नहीं निकालनी है. दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. सो क्लियरली लिख के रखिएगा यहाँ पे. ये एक्चुअली क्या है मेरे लिए? ये एक्चुअली मेरे लिए है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है, राइट? कंडीशन. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंडीशन, आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट विल बी द वैल्यू. ओके, सो देयरफॉर हम क्या करेंगे? इस चीज को ऊपर रखेंगे. सो इस चीज को जब मैं ऊपर रखूंगा तो जस्ट 8 टू दी पावर 6 8 टू दी पावर 5. तो जरा एक बार हम u a का इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ. ओके, नाउ लुक एट दिस इज द लास्ट स्टेप. नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप. ये देखो प्लीज, ये मेरी u थी. सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लेट अस से दिस एज u. नाउ आई विल पुट a, नो प्रॉब्लम. With that 8 to the power 6. Now look over here. Look over here. Now 8 to the power 6, and that is 2b upon a. 2b upon a. Here? और माइनस का स्मॉल b और उसके साथ 8 to the power 12. 8 to the power 12 मतलब 8 to the power 6 और यहाँ पे आप लिख सकते हो 8 to the power 12 अगर चाहिए
So this will become 4b square by a square, right now? Squaring both the sides, simple, okay? So that will give rise to 4b square by a square. चलेगा ना? क्लियर? अब इसको जरा आप एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व कीजिए, देखिए वहाँ पे चार कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट? अगर मैं कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ तो यू जस्ट गो थ्रू दोज, राइट, स्टेप्स. आप देखिएगा अगर कहीं पे मिस्टेक होती है तो जस्ट रेक्टिफाई, राइट? आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस दैट यू गो थ्रू, ओके? राइट, सो ये जरा करके ऊपर में जब आप इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे, देखिए उन चार में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए. अगर नहीं होता है जस्ट चेक द ऑप्शन, राइट? चेक द कैलकुलेशन, फाइन, ओके? ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट सेशन में और नए क्वेश्चंस लेंगे, फाइन.